میں حسینی عالم BA فرسٹ ایئر انگلش میڈیم کی ہوں، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ انگلش میڈیم سے پڑھنے سے ہی ہمیں آگے ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اردو میں زیادہ بول بھی نہیں پا رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اردو میں بولوں، کیونکہ یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ اردو کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور اگر ہم اردو پڑھیں گے تو ہم دینی معلومات بھی زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے۔ اب میرا سب سے بڑا بیریئر یہی ہے کہ میں اردو دینی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ میں انگلش میڈیم کی ہوں، اور انشاءاللہ آگے چل کے میں اردو میں پڑھنے کی بھی کوشش کروں گی۔ اور یہاں پہ یہ بھی کورسز ہیں کیا جو انگلش میں کر سکتے ہیں، اس کی بھی معلومات کرنا چاہ رہی ہوں میں، کہ یہ مانو میں انگلش میڈیم کے لیے کیا اسکوپ ہے، یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے، بہت ساری چیزیں نئے معلوم ہوئے کہ پالیٹیکنک کے کورسز بھی آپ کو اردو میڈیم میں ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا مجھے۔ میں سمجھتی تھی کہ پالیٹیکنک صرف انگلش میڈیم میں ہی کر سکتے ہیں آپ۔ سو تھینک یو سر، تھینک یو فار دا انفارمیشن یو ہیو گیون، وی آر ویری تھینکفل۔ ڈی.سی صاحب السلام علیکم، اور اساتذہ اکرام آپ کا بہت بہت سلام کرتے ہیں۔ طالبات آج یہاں حاضر ہوتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اور یونیورسٹی سے ملنے والی فیسلٹیز آپ کو کون سی ہوتی ہے۔ سینٹرل یونیورسٹیز میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جو ہے یہاں پر فیسلٹیز ہوتی ہے، اسکالرشپس بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اچھی پوسٹ پہ جابس بھی مل سکتی ہے آل اوور انڈیا یا پھر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جیسے ہی گریجویشن ختم ہوتا ہے یونیورسٹیز کا رخ کیجیے گا، چاہے آپ کسی بھی کورس میں داخلہ لیں۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ وقت کی بہت کمی ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سب کو نکلنا ہے، تو بس یہ نہیں ہے تمہاری منزل، یہ نہیں ہے تمہاری منزل اور آگے پڑھنا ہے، اتنا نہیں ہے تم کو کافی، یہ نہیں ہے تمہاری منزل اور آگے بڑھنا ہے، اتنا نہیں ہے تم کو کافی اور آگے بڑھنا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ بچے اپنے آپ کو اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور ہم بھی دیکھیں گے ان کو۔ آپ کی برائٹ فیوچر کے لیے آل دی بیسٹ۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عزت مآب اس جامعہ کے وائس چانسلر محترم پروفیسر عین الحسن صاحب، اس یونیورسٹی کے دیگر پروفیسرز، میرے اپنی کالج کے اساتذہ اور طالبات، جزیات دوست ہرچے کنی عمر زائد است، جز عشق ہرچے بفانی بطالت است، سادی بشروح لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نرمائے جہالت است۔ مجھے اس بات کی اطلاع آپ تک پہنچا دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں خود بھی اسی جامعہ کا طالب علم رہا۔ میں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے 2 ڈگریاں کیے ہیں، بڑے ڈگریاں، کیونکہ وقت کم ہے، اپنی صفائی میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد سے میں نے 3 کیے ہیں، اور اس جامعہ سے میں نے سب سے پہلے ایم اے اردو کیا، اس کے بعد ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، اب حال ہی میں نے ڈپلومہ ان پرشین بھی کیا ہوں۔ بہرحال یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یا اکٹھا کرانے کی کوشش کی ہے جناب اعجاز علی قریشی صاحب اور پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو تحریک دیں۔ اب ہمارے جو اساتذہ کالج آف گورنمنٹ ڈگری کالج حسین عالم سے آئے ہیں، اس میں کے 3 ایسے اساتذہ ہیں جو اسی یونیورسٹی سے جو نہ اٹھے ہیں۔ مجھے جاب عربی پڑھنے سے نہیں ملا، حالانکہ میں نے عربی بھی کیا ہے، میں نے پرشین بھی کیا ہے، جرنلزم بھی کیا ہے، لیکن میں آج اردو کی روٹی کھاتا ہوں، جس کا میں نے اس یونیورسٹی سے ایم اے اردو کرنے کے بعد ہی میں نے نیٹ کوالیفائی کیا، اس کے بعد مجھے جو ہے میں روزگار سے جڑ گیا ہوں۔ بہرحال مصطفیٰ علی سروری صاحب، جب سے آپ کو جو زمین خیالات کا اظہار کر رہے تھے آپ کے سامنے، اس میں یہی تھا کہ آپ کو تحریک دی جائے۔ وہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سب وہاں کے مشہور شخصیتوں کا ذکر کر رہے تھے، اور میں نے اس میں 2 نام اور اضافہ 3 نام اضافہ کر دیے جو آپ کے تینوں اساتذہ ہیں۔
بس مقصد یہی ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ہمارے ڈی سی صاحب کے سامنے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہماری یہ طالبات یہاں سے ہمارے کالج سے ڈگری کامیاب کریں گی، ضرور آپ کے جامعے میں اس سرزمین پہ جو ہے نا قدم رکھیں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ پالیٹیکنک کیوں نہ ہو یا پھر جو ہے کوئی اور، یعنی کہ فاصلہ نظامت فاصلہ کی تعلیم بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ میں یہاں سے ہمارے کالج سے جو ہے نا کچھ نام بھیجوں گا اور اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا، مجھے یہاں پر مدعو کرنے کے لیے اور ہمارے طالبات کو یہاں پر بلا کر مستقبل کی جو ہے نیا عمل ان کو تیار کرنے کے لیے جو ان کے ذہن کو کشادہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں ارباب مجاز کا بے حد ممنون ہوں۔ شکریہ۔ حسین عالم کی طالبات، سب سے پہلے تو ہمارے آرگنائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زحمت کا وعدہ کی اور اتنی ساری بچیوں کو یہاں ہمارے کیمپس میں لایا، اور معذرت بھی ان سے اگر آپ کو کوئی دقت ہوئی ہو، کوئی تکلیف ہوئی ہو، ہمارا پرپس یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رفع دفع نہ کریں۔ ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اس نسل کو جس قدر علم و آگہی سے مالا مال کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے میں صلاحیت اور جتنی ہمارے میں قدرت ہے، ہم وہاں تک ان کے حق میں کام کریں۔ دو تین باتیں آپ سے جو ہم نے محسوس کی ہیں پچھلے 3-4 برسوں میں، اب وہ سچائی ہے۔ آپ کی عثمانیہ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی، بڑا نام تھا اس کا، لوگ دور دور سے عثمانیہ یونیورسٹی میں آتے تھے، اور عثمانیہ یونیورسٹی ہندوستان کی پہلی یونیورسٹیوں میں سے ہے۔ سن 1919 میں عثمانیہ یونیورسٹی بنی۔ اس وقت بنارس ہندو یونیورسٹی اپنے یونیورسٹی والے شیپ میں نہیں تھی، جب عثمانیہ یونیورسٹی آلریڈی ایک وائس چانسلر کو اپائنٹ کر کے یونیورسٹی شروع ہو گئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا مگر یونیورسٹی نہیں تھی۔ آپ سوچئے کہ اس حیدرآباد کو کیا افتخار حاصل تھا، اور عثمان علی کا وژن تھا وہ کیا تھا۔ اتنی بڑی زمین دی تھی عثمانیہ یونیورسٹی کو، آج بھی عثمانیہ یونیورسٹی کا کیمپس دیکھنا، اور کیا خوبصورت ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ ایلیویٹڈ فارم میں بنایا تھا، یہی نصیب ہے۔ کالجز اس سے افیلیٹڈ تھے، اردو میڈیم تھا۔ کون سا میڈیم ہے آج؟ کیا عثمان علی کا کوئی خواب پورا ہوا؟ ان کی روح اس وقت جو ہے وہ رو رہی ہے۔ آپ کیجیے، مجھے کہنے میں کوئی آئے، وہاں اردو ڈپارٹمنٹ کو ریڈیوس کر دیا، وہاں کوئی پرماننٹ فیکلٹی نہیں۔ پرشین کا ایک آدمی ہے جو عربی بھی دیکھ رہا ہے، پرشین بھی دیکھ رہا ہے، اور باقی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ 10,000 فیس دیجیے تب میں ایڈمیشن کا پرمیشن۔ آپ دیکھیے عثمانیہ یونیورسٹی، میں یہاں کے عثمانیہ یونیورسٹی کے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں بھی گیا، میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں آپ کے 5 ٹیچرس کی ہم سیلری دے دیں گے، باقی آپ خود مینج کیجیے۔ یہ بیچارے
मेंटेन नहीं कर सकते। इन स्कूलों को देखिए, यहाँ तक घास जमी हुई है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स रखे गए हैं, किसी को 6,000, किसी को 7,000। क्या इसमें जिंदगी का गुजारा होता है? हमारे यहाँ का कोई भी टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल भी 50,000 से नीचे नहीं पाता, मिनिमम 50,000। अब इमेजिन कीजिए, कहीं 50,000 एंड कहीं 5,000, 6,000। उसका क्या दिल लगेगा पढ़ाने में? वो अपने घर को क्या देखेगा, अपनी फैमिली को क्या देखेगा? ये थोड़ी सी बातें मैं आपको रियलिटीज बता दूं कि क्या हो रहा है। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी ग्रांट पूरे सेंटर से, जितने टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड सैलरी है, अगर किसी प्रोफेसर की 3 लाख सैलरी है तो वो महीने के आखिरी दिन में उसके अकाउंट में चली जाती है। क्यों यूसुफ साहब, क्या एक दिन का भी डिले होता है? यहाँ जितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उन सबको नॉन नेट फेलोशिप दी जाती है। कितनी फेलोशिप है नॉन नेट? 8,000 रुपया हर पीएचडी के स्टूडेंट को मिलता है। अब की हम लोगों ने मेरिट कम मीन के लिए जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनको कुरान फाउंडेशन से हर बच्चे को जो मेरिट कम मीन 600 बच्चों को, 600 लड़के और लड़कियों को सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए। और आने वाले वर्षों में और ये रकम बढ़ेगी, सीड मनी है। अब आप ये बताइए, ये यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जहां टीचर्स के पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स परेशान है बेचारे। यहाँ क्या है, ये इम्प्रेशन आप अपने दिमागों से निकाल दीजिए कि ये यहाँ हर चीज उर्दू में है। यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, वो उर्दू और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाइएगा, इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपको उर्दू में अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़ाएंगे। फारसी में जाइएगा तो फारसी उर्दू का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अरबी में जाइएगा तो अरबी उर्दू का कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट में जाइएगा तो मैनेजमेंट में हाइब्रिड मोड है, मतलब आपको इंग्लिश में क्या, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बगैर अंग्रेजी सीखे हुए मेन स्ट्रीम में चले जाएं। आसान नहीं है। आप क्या उर्दू में मैनेजमेंट करने के बाद आपको कोई वहाँ कंपनी में जॉब देगा? आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए कि आपको मशीनों के सामने बैठना है, आपको डेटा देना है, वो सारे के सारे तो इंग्लिश में। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि उर्दू का मतलब यहाँ उर्दू की पढ़ाई है। प्लीज रिमूव दिस। ये जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पॉलिटेक्निक है, यहाँ के बच्चों से बात करके देखिए, सब बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर सभी कुछ है। यू नो, कंटेम्परेरी एजुकेशन दी जाती है और यहाँ पर 70 कंपनियां आती हैं बच्चों का प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट। हम उनको जॉब भी देते हैं। अब हमें ये बताइए, हैदराबाद किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, चाहे वो JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, भोपाल यूनिवर्सिटी हो,
ہر روز جس دن یونیورسٹی کھلی ہے اس روز بڑی اچھی تعداد میں شہر کے بچے آتے ہیں یونیورسٹی میں اور شام کو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر. ہاسٹلس ہیں. اب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہاسٹلس کہاں ہیں؟ بہت نامنل. وہاں تو 90% اسٹوڈنٹس کوئی دلی میں جو رہتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. یہی آج دلی یونیورسٹی کے کالجز کا ہے. وہاں ہاسٹل جاتے ہیں کالج میں شام کو. اس یونیورسٹی میں کہ جو حیدرآباد میں ہے جس کو ارجن سنگھ بھوپال لے جانا چاہتے تھے, چندر بابو نائیڈو نے he put his foot down. He said that nothing doing, we are going to allocate land, and that will be more than 200 acre land in Hyderabad, and this Urdu university will be established in Hyderabad only. آپ کو پتا ہے کتنی قیمتی ہے کہ 200 ایکڑ ایک طرف آپ کا فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے, اس طرف آپ کا سائبر آباد ہے, اس کے بیچ میں ہے. اور ادھر جائیے گا تو آپ کو ہائی وے, یہ ہائی وے پر ہے, سامنے جائیے گا تو آپ کو سیدھا ایئرپورٹ لے جائیں گے. 30 منٹس میں آپ ایئرپورٹ. یہ فیسلٹیز اس یونیورسٹی میں جو نیو حیدرآباد آپ دیکھ رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا حیدرآباد ہے, کوئی نہیں. اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس لوکل ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں, اس یونیورسٹی میں حیدرآباد کے بچوں کی تعداد اتنی کم کیوں؟ یہ تشویش ہے. اس لیے کہ آج بھی آپ کے دماغ میں ہے کہ گھر سے نکلے اس مارکیٹ, گھر سے نکلے بس ماں باپ ہی کہہ رہے ارے کہاں جانا, یہیں پر پڑھنا. یہاں کم فیس لگتی, گورنمنٹ ادھر دیتی, کیا دیتی, اس کے بعد کیا, ارے بھائی اس کے بعد کیا کالج کی ڈگری دینے کے بعد تمہاری جاب لگ جائے گی. آج کل دیکھو یہ میں بتا دوں تمہیں, جب تک کہ اس ڈگری پر کسی نام کا سینٹرل گورنمنٹ کا اگر ٹھپا لگا ہے, یہ پتہ لگ گیا کہ یہ یونیورسٹی ہے, کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا. اچھا چلو یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پر نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت ہم نے آلموسٹ 30% جو کورسز ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ میں ڈال دیا. اب تم لوگ تو وہ کہو کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہنر کہاں ہے, تو ہنر تو بھائی there is will, there is way. آپ ہنر سیکھنے کے لیے آئیں تو ہنر ملے گا. جہاں آپ کو سکھایا نہیں جا رہا ہے ہنر کو کیا کریں. اب آپ یہاں آئیں, یہاں پر انڈر گریجویٹ پروگرام کا ہے, نہیں پتا ہے, ووکیشنل اسکل. ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں وہ آپ کے پورے حیدرآباد کے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں. ڈائگنوسٹک سینٹرز میں ہماری بچیاں بیٹھی ہیں, بلڈ نکال کے جو اس کی رپورٹ لکھ رہی ہیں وہ ہماری بچی. فیشن ڈیزائننگ پتہ ہے اس سے بڑی انڈسٹری کوئی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں سے کتنے لوگ گئے ہیں وہ ریتو بیری کو اور وہ ریتو کمار کو دیکھا ہے, سب کے آؤٹلیٹس ہیں بنجارہ ہلز کے, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا فیشن نہیں کرتی تم؟ ارے فیشن کرتی ہو کہ نہیں؟ کون سا فیشن؟ شادی ہوئی تو اس میں دیکھ لو ایک سے ایک جوڑے نظر آ رہے ہیں پہن کے, یہی فیشن. اتنے مہنگے ہوتے ہیں وہ کپڑے,
अरे अम्मा फलां की शादी होने वाली है, नया कपड़ा बनवाओ। नहीं नहीं, पुराना पहन लो ना, पुराना मैं 3 बार पहन चुकी, नहीं पहनी, नया बनवाओ। तो नया वाला बन रहा है। अरे नहीं, वो वाला घराना नहीं चाहिए, इधर वाला शरारा चाहिए। देखो ना, हम भी जानते हैं, हमारे को तो खानदान पड़ा है ना, सब अच्छे हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि यू हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड। आपको नहीं जाना है पिछले दौर में, आप झोपड़ी में रहने के लिए तैयार नहीं हो। आपको वेल फर्निश्ड हाउस चाहिए जिसमें आपको रहना है। हमें अगर पता चल जाए कि कोई कहे बेचारा बहुत गरीब लड़का है, अच्छा है, नमाजी है, परहेजगार है, रोजादार है, बहुत इबादत गुजार है, माँ बाप का कहना मानता है, करता क्या है? अरे करता क्या है, रोज का तो है नहीं। अम्मा उससे बांध रहे हो जो निकम्मा है, मुसीबत है। अब उसको पालो। मैंने देखा है बहुत सारे हस्बैंड हैं, मेरे तो सारी फ्लाइट है वहाँ फलकनुमा में है, देखा है वहाँ लेडीज को लगाया हुआ, मैंने कम से कम कितनी 20-22 लेडीज को लगाया वहाँ फलकनुमा में जो काम कर रहे हैं, कि कोई क्राफ्ट पढ़ा रहे हैं, कोई अपने प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं। तो इनका क्या है, मैं इनका खुलिया खाट तुमको बता नहीं सकता। मैं इस हैदराबाद का स्केलेटन जानता हूँ। यहाँ क्या है, जब तक वो काम पर है इजाजत। यार यूसुफ, जो बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, जब तक वो काम पर है तब तक इजाजत। उसके बाद घर में कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है, बच्चों को देखना है। अरे ऐसी क्या पाबंदी है, क़यामत कर रहे हो। और सैलरी उसकी जिस रोज आ जाती है उधर पूरी सैलरी पर कब्जा। खुद तो यूट्यूब देख रहे हैं, सुबह से शाम तक यूट्यूब। उठे नीचे गए, वो होटल में बैठे, चाय पिया, बिस्कुट खाया, फिर आ गए। अरे मेरा मजाकी खुदा है, अबे जो पढ़ता है यार मजाकी खुदा कौन सा है? अरे नहीं जाने का। सी एजुकेशन तुमको यहाँ से बचा सकती है। बेस्ट एजुकेशन कैन सेव यू। आई एम टेलिंग यू, मैं प्रैक्टिकल में जिंदगी गुजारी मैं 37 बरस जेएनयू में पढ़ाया है। 37 years, I have produced 110 PhD. मैं फुल ब्राइट प्रोफेसर रहा हूँ अमेरिका में। सारे मुआशरों की मैं कैफियत को जानता हूँ, वेस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, या अफगानिस्तान हो या ईरान हो, ये सारी जगह जाने कितने स्टूडेंट्स रहे हैं, इनको मैंने पढ़ाया। नथिंग इज हिडन फ्रॉम माय आईज। मैं इस हैदराबाद की भी हर लोकेलिटी के बारे में जानता हूँ, हर कॉलेज के बारे में जानता हूँ। आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इतना खुल के, उसमें 100% बात नहीं कर रहा, ये भी मैं 30% बात कर रहा हूँ, 70% तो बात कर ही नहीं सकता। अरे यहाँ लोग अपनी हेल्थ नहीं देख रहे। देखोश क्या हो गया है, खाली खाएंगे, पाए खाएंगे, डायबिटिक है, 3-3, 4-4 चम्मच शक्कर एक प्याली, बोल अरे क्या कर रहे हो, जहर है ये सब। कोई बताने वाला नहीं है। तो एजुकेटेड, तुम एजुकेटेड हो, तुम उनको बताओ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, अब्बा मर जाओगे। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं, सुन नहीं रहे हैं। बैठिए, ऐसे निकली हुई है तो क्या करना है, मजाक कर रहे हैं यार, फैमिली को देख नहीं रहे। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारे दरवाजे पर आके दस्तक दे रही है यूनिवर्सिटी, इसको समझो क्यों दे रही है। तुम पूरी फैमिली को बना सकते हैं। अब्बा का रोल बड़ा अजीब सा है, हंसो नहीं। एक अब्बा की बात मैं बताऊं, ये थी हैदराबाद में।
बच्चा जो था उसको समझ रहे थे लड़का पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, अब्बा नीचे बैठे थे, बेटा उतर के आया ऊपर वाले कमरे से, कहाँ साहब जाते, आज आपका रिजल्ट आने वाला है। हाँ अब्बा मेरे को मालूम है। तो जाइए लेके आइए रिजल्ट, और अगर फेल हुए तो मेरे को अब्बा ना कहियो। गए लड्डू लेके आए, बाप बैठे हैं ड्राइंग रूम में, दाखिल हुए। क्या हुआ? नक्को पूछो बशीर साहब। Do you want to see such situation? यूसुफ साहब अभी आपसे कह चुके हैं, एजाज अली कुरैशी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनका ममनून हूँ। अलुमनाई एसोसिएशन जो हैदराबाद चैप्टर है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनका मालूम में एक ऑफिस भी है। ऑफिस है कि नहीं है? आप बैठ सकते हैं। आप जो हैदराबाद के अलुमनाई के लोग हैं, ऑफिस खुला है, मीटिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। हमने कोशिश की थी कि हम 50% दे देंगे अगर IRCTC वहाँ से बस चला दे, चार मीनार से और यहाँ तक। हमारी कोशिश जारी है, तो हम ऐसा करेंगे। आपसे बच्चों से जो है वो महीने का अगर मान लीजिए वो 1000 रुपये कह रहे हैं तो 500 हम दे देंगे, 500 पॉइंट से होती भी बस आ जाएगी यहाँ कैंपस में, और 2-3 ट्रिप अगर 10 मिनट की तो यूनिवर्सिटी ये सब काम पहले आती थी बसें, अभी इन्होंने बंद कर दी। मैंने महमूद अली साहब से बहुत कहा, जब भी कहो महमूद अली आने ले ले, आप कहते हैं कल से, उसके बाद जाते जाते 2 अदद मुझे बायोडेटा बना देंगे, इनका अपॉइंटमेंट करना। यार आया तुझको, ले गया मुझको। मैंने कहा बस का इंतजाम करो मेरे को, आप 2 अपॉइंट करो। ये गिव एंड टेक एक ऐसा नहीं चलेगा। इतनी बड़े हैदराबाद का सवाल है, हमारी जो मशीनें यहाँ रखी हैं, हमारे जो लैब है यहाँ पर, इन पर इनका भी उतना ही बराबर से हिस्सा है जितना यूपी और बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप समझिए यहाँ क्या क्या है। आपका हमने आपसे बताया था फैशन डिजाइनिंग, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग भी है यहाँ पर। आपको पता है, आप अपना अगर आप में ये हुनर आ गया, अभी बच्चों ने बनाया है तो लकड़ी से पूरा गेटअप माहौल बना। अभी कहीं क्या बाजार में ले जाएंगे तो उसके खड़े खड़े खरीद लेंगे आप। ये यहाँ और फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री तो कोविड में भी मरी नहीं थी। अरे कोविड में भी बंद नहीं हुई थी फैशन, ये इंडस्ट्री तो बंद ही नहीं होगी। और अगर आपको हुनर आ गया, यकीन जानो इसी हैदराबाद में मैं कहता हूँ, चलिए आज नहीं कल आपको एक आउटलेट मिल जाएगा और आप न जाने कितनों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। यहाँ आपको सिखाया जाता है, आपको नहीं मालूम, आपने जाके दुपट्टा खरीदा है वहां से, कौन मार्केट है वो, कौन मार्केट, लाड बाजार से खरीदा। उसने कहा अरे प्योर कॉटन है, ले लीजिए मैडम, ले लीजिए, आप लेके चले गए। तो कॉटन नहीं है, कैसे पहचानना है कॉटन है? क्या मालूम है आपको? उंगली रख के पहचान सकते हैं क्या है ये किधर का कॉटन है? ये सिखाया जाता है इस यूनिवर्सिटी। आपके लिए बेस्ट हेल्थ सेंटर है, आपका इंश्योरेंस है हॉस्पिटल्स में। खुदा न करे कोई बात हो जाए,
आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी पूरा खर्चा उठाना। यहाँ एडमिशन बगैर इंश्योरेंस के नहीं है, इंश्योरेंस के साथ साथ एडमिशन है। और यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने टाई अप किया हुआ है हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल में भी आपको रेफर किया जाएगा उसमें आपको नहीं देना है, वो सारा पैसा यूनिवर्सिटी के थ्रू है। और हमारा हेल्थ सेंटर है, आप जाइए, दोपहर में आपको खाना खाना है, हाईली सब्सिडाइज फूड, 3 वक्त का खाना, और उसमें 3 दिन चिकन 65, सब टॉप क्लास का खाना है। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। यहाँ जो खाना है, रोटी निकल के आती है, कितनी के लिए 1200 रोटियां, 1200 रोटियां 1 घंटे में निकल गया इतनी मशीन। यहाँ जो लड़कियां रह रही हैं, 1100 लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं, जाके देखो कैसे रह रही हैं। यही है, आपको पढ़ने की लाइब्रेरी बेहतरीन है, आपको आजादी है, और क्लब हाउस बनाया गया है जिसमें आप अपना लोकल टैलेंट भी दिखा सकते हैं। उस क्लब हाउस में 300 बच्चे, कोई पेंटिंग में है, कोई ड्रामे में है, कोई फोटोग्राफी में है, कोई म्यूजिक में है, कोई डिफरेंट आर्ट्स को सीख रहे हैं सारे बच्चे। 12-12 बजे रात तक बच्चे वहां पर प्रैक्टिस किया करते हैं। इतना बड़ा वो लेना आसान काम नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, ये मेरे आने के बाद सब खुला है। यहाँ लेडीज क्लब है, यू कैन ज्वाइन लेडीज क्लब ऑल्सो। अभी तो उनका प्रोग्राम होने वाला है, लेडीज क्लब का सभा वालों को बुलाया है उन्होंने। आप लोग जाइएगा, देखिए मार्केट लगी हुई है वहाँ, जाके वहाँ कम से कम कुछ ना खाइएगा तो गोलगप्पा खा लीजिए, वहाँ है लगा, अभी सब मार्केट लगी, मैं वहीं से इनॉग्रेट करके आया। इसी लॉट ऑफ पैसे। मेरी एक ख्वाहिश है, इस साल कितने बच्चे आए हैं मालूम है जिन्होंने एडमिशन लिया है? आईटीआई में 120 बच्चे, कोई 100 बच्चे अभी हैदराबाद के इस साल आए हैं, एजाज साहब की वजह से आए। आप आइए, देखिए, मैं आपसे मैं ये नहीं कहता, मैं कोई उस्मानियत की मैंने बुराई नहीं की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग अब वो यूनिवर्सिटी उस लेवल पर नहीं है, मैं आपसे सच कहता हूं। और उर्दू के हवाले से तो वाकई नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं वहां। मेरा वक्त हो गया, ये जो कहना था कह दिया। यहां पर हमारे पास, सुनो, यहां हमारे पास 8 स्कूल हैं। पहला स्कूल है स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ये बहुत बड़ा है, हमारे पास कोई 60,000 स्टूडेंट हो गए हैं, 60,000 स्टूडेंट जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें इस साल से हमने डिस्टेंस में मैनेजमेंट भी रख दिया, MBA डिस्टेंस में हम चलाते हैं, कोई नहीं चलाता। डिस्टेंस में आप घर पर हैं, आपको सारा मिलेगा, और आपके घर के करीब कोई जगह होगी, वहां पर लर्नर सपोर्ट सेंटर होगा, उसे अलग होगा। अब आप देखिए, एक स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, सेकंड हमारे पास आता है स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सरवड़ी साहब उसी के हैं, और बाय द वे सरवड़ी साहब और एजाज साहब में अभी तो अच्छा खासा निकाह हो गया है। मैं चाहता हूँ आप लोग दुआ कीजिए कि ये निकाह कायम रहे। यहाँ दिलाव बहुत तेजी से होता है, इसलिए कह रहा हूँ निकाह रहे भाई। उसके बाद है स्कूल, ये उसमें सरवड़ी साहब प्रोफेसर है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। फिर हमारे पास स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, बड़ा स्कूल है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्ला 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 बहुत कुछ। उसके बाद हमारे पास है
स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, बहुत बड़ा स्कूल है ये भी। फिर हमारे पास है स्कूल ऑफ एजुकेशन। स्कूल ऑफ एजुकेशन में हमारे यहाँ 100 फैकल्टी, 100 टीचर हैं, 100। इमेजिन है, एशिया का सबसे बड़ा। और हमारे 8 कैंपसेस और भी हैं जहां हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, बीएड, एमएड और पीएचडी। दरभंगा है, आसनसोल है, औरंगाबाद है, फिर आपके श्रीनगर है, भोपाल है, ये सारी जगह जहां पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद 1200 का एडमिशन होता है। हाँ, 1200 टीचर्स मानू देती है हर साल हिंदुस्तान को, इंडिया को। 200 मानू में नहीं है, बहुत बड़ी जगह। हमारे 33 कैंपसेस हैं पूरे इंडिया में, ये एक कैंपस है। इसके अलावा 33 कैंपस है, 14 स्टेट में हमारी यूनिवर्सिटी है। एक ही जगह से गवर्नमेंट होता है, यहीं से। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर हमारे पास है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये भी बहुत जबरदस्त स्कूल है हमारे पास। फिर हमारे पास है स्कूल ऑफ लॉ, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बड़ा स्कूल है। इस तरह से करके हमारे पास कुछ सेंटर्स हैं, वेटरनरी स्टडी सेंटर। एंड देन सबसे अजीब बात है, लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है जो हमारा स्कूल ऑफ लॉ है, जिसमें 5 साल का बीए एलएलबी है, 1 साल का, 3 साल का एलएलबी है, 1 साल का एलएलएम है और फिर पीएचडी प्रोग्राम है। 4 यूनिट्स हैं हमारे पास। और पता है हमारी फीस क्या है? कितनी है? जोर से बोलो। 50,000? 5? नहीं, 2 और इतनी सस्ती नहीं होती एलएलबी करने में, बता मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम फीस के चक्कर में नहीं जाते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में एम्पावरमेंट आ जाए। जिस दिन ये बच्चियां, सुनिए, ये बच्चियां जाके अदालत के अंदर खड़े होकर जज के सामने बोलेंगी कि जज साहब नाइंसाफी मत करो, जिसका हक है उसको हक दो, उसके फेवर में जजमेंट करो, आई थिंक उस दिन मानू कह सकती है कि हम कामयाब हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी, अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं आखिरी में बता देता हूं तुम्हारी ताकत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जावेदनामा में लिखा है, उन्होंने, इकबाल को तो सब लोग जानते हो ना, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये नुक्ते सरबस्ते दुनिया में, मैं तुमसे एक नुक्ता जो सरबस्ता, जो अभी तक बाहर नहीं आया, जिस पर कवर पड़ा, ओके, लेट मी रीड ए टॉप सीक्रेट रिवीलिंग ऑन अगर बंदे मना दिल में, इफ यू टेक माई एडवाइस सीरियसली, अगर तुम मेरी बात को अकल से और समझ के उसको एडॉप्ट करो, तब मैं कहूंगा। मैं उस राज से पर्दा हटा रहा हूं, मगर उसकी शर्त है कि तुम उसको समझो कि मैं क्या राज बना। आगे सुनो, अभी गाली सुनो। आगे कहते हैं कि मेरी गर्द तन जानी लगा, अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो मर जाओगे। तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है तो खत्म हो जाओगे, यू विल गेट फिनिश्ड। मगर जानी वेतनदारी न मिली, और अगर तुम्हारे अंदर जान होगी तो
तुम कभी मरने नहीं। अपने में जान पैदा करो। मैं तुम सबसे अपील कर रहा हूं, जब अपने घरों को लौट के जाना, कमरे में मोबाइल को ऐसे रखना। एक बार सोचना, आज क्या कहा था वाइस चांसलर साहब ने, उसके बाद जाके अब्बा से अम्मा से कहना, अम्मा अब्बा तुम लोग कितने डार्क में हो, आज हमको रोशनी मिली है, कहोगे? थैंक यू सो मच। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे ताल्लुक़ात आम्मा ने अंजुमन तलबाए ख़दीम के ताउन से आज के इस उर्दू यूनिवर्सिटी के दौरा करे प्रोग्राम को खतियत दी थी। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम की सरपरस्ती करने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन मौजूद थे। साथ ही हुसैनी अलम डिग्री कॉलेज के सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अनवरुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस के अलावा डॉक्टर फौजिया फ़ातिमा, मोहतरमा गौहर साहिबा और मोहतरमा मुमताज़ सनम अदा साहिबा भी तालिबात के साथ मौजूद थे। आज के इस प्रोग्राम में तकरीबन 130 तालिबात ने उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यहाँ मौजूद तालीमी मौक़ों के मुतालिक आगाही हासिल की। उन्होंने अपने तासुरात में इस बात पर खुशी का इजहार किया कि असातिज़ा की निगरानी में उन्हें उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा करने और यहाँ दस्तयाब तालीमी मौक़ों के मुतालिक जानने का मौका मिला। साथ ही उन्हें इस बात से भी वाक़िफ़ियत हुई कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले तलबा अगरचे उर्दू में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट का शानदार रिकॉर्ड मौजूद है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर बल्कि सरकारी और गैर सरकारी हर दो शोबों में उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़ारिगीन ने शानदार मुलाज़िमतें हासिल की और इस बात को साबित किया कि उर्दू यूनिवर्सिटी से तालीम किसी तरीक़े से भी उन्हें पीछे नहीं रखती है, बल्कि उर्दू यूनिवर्सिटी से तालीम ही उनके लिए आगे बढ़ने का एक अहम ज़ेना साबित होती है। मेरा नाम जवेरिया है और मैं हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज की तालिबा हूँ, जो कि बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट है। मुझे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आके बहुत कुछ जानने का मौका मिला और यहाँ के कई सारे कोर्सेज के मुताबिक मालूम हुआ और यहाँ पे आकर मुझे ये भी महसूस हुआ कि एजुकेशन की कोई खैर नहीं रही थी कि सिर्फ 10th पढ़ लिए तो काफ़ी है लड़कियों के लिए या इंटर पढ़ लिए तो काफ़ी है। यहाँ पर डिग्री पीएचडी तक के भी कोर्सेज है और जो ये लोग फाइनेंशियली तौर पर जो पीछे हट जाते हैं एजुकेशन को लेकर, सर ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे कम से कम पैसों में भी बहुत आला से आला तालीम दी जाती है। तो हमें इससे ये भी मालूम होता है कि हमें पैसों के खातिर एजुकेशन सीखने से पीछे नहीं हटना। यानी अगर आप के अंदर जज्बा है कुछ सीखने का तो आप हर हाल में सीख सकते हैं। मुझे आगे ये सब चीज़ें मालूम हुई और मैं खुद बहुत मोटिवेट हुई। यहाँ तक के मैंने ये अहद किया है कि इंशाअल्लाह मैं बीएससी के बाद बीएड और एमएड भी करूँगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इरशाद बेगम है। मैं गवर्नमेंट डिग्री हुसैनी आलम कॉलेज से ग्रेजुएट कर रही हूँ। मैं बीएससी साइंस स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में आके बहुत जानकारी मिली अकॉर्डिंग टू आवर कोर्सेज और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा। आगे हम अपने भाई बहनों को और हमारे दोस्तों को ये बात बताएंगे ताकि वो भी यहाँ आके अच्छा मौक़ों का फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अनवर साहब, कुद्दूस साहब और शोएब साहब और दीगर मौजूदी जो हुसैनी अलम डिग्री कॉलेज के यहाँ टीचर्स मौजूद हैं और प्यारे तलबा, आप जानते हैं कि आज आप यहाँ आने की सबसे अहम वजह ये है कि हमारे वीसी साहब ऐनुल हसन साहब, जिन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए शहर के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और दूसरे स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए ये तजवीज़ पेश की और जिसके ज़रिए से आज सारे हैदराबाद के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आज स्पेशल ये यूनिट बनाते हुए हम पीसी साहब से अदब ख्वाहिश की कि ये बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी यहाँ पर लेके आना है
तो साहब फौरी हमें इजाज़त दे दी और जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आज मौजूद हैं। और मैं आप तमाम लोगों को से ये गुजारिश करता हूँ कि हम पीसी साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज हैदराबाद में यूनिवर्सिटी आकर 20 साल से ज़्यादा होगा, लेकिन तकरीबन लोगों को यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन पीसी साहब आने के बाद तकरीबन प्रोग्राम ऐसे हो रहे हैं जो पुराने शहर के कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी देखते हैं काफ़ी खुश हो रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि ओल्ड सिटी के पुराने शहर के बच्चे यहाँ एडमिशन भी ले रहे हैं। तो मैं इसके लिए हमारे तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ ही साथ पीसी साहब से अदबन ये ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ साथ कॉलेज के बच्चों के लिए भी ये तकलीफ आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम में आज फ्राइडे भी है, पीसी साहब को आपसे बात करना है, तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपनी जगह लूँगा। शुक्रिया, खुदा।